निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट संसद में पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल, रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी ज्यादा फोकस रहा है और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेसीबी से दीपक शेट्टी साहब और नारायण सेतुरमन सर। सर, आप दोनों से पहला रिएक्शन, किस तरीके से देखते हैं इस बजटरी एलोकेशन? काफ़ी सारी चीज़ें क्रिटिकल मिनरल पे हुई हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे हुई है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे हुई हैं। सर, जेसीबी आपसे शुरू करते हैं। दीपक सर, लास्ट फ्यू ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ बीन फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वो जर्नी निरंतर आगे बढ़ रही है। 11 लाख करोड़ के सामने इस बार 12.2 लाख करोड़ अगेन रीइंफोर्सेस द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीसरी बात है, ये बजट के द्वारा गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कई सालों से हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। जिस तरह से इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, whether it is in the through the high-tech manufacturing or whether it is through MSME, I think a lot of announcements have been made. So if I talk about this budget, one of the biggest announcements has been made when the government is focusing on infrastructure development. Availability of construction equipment is also very important. India is today the third largest construction equipment market और गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में बढ़ाने के लिए जो स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, उसका तो मैं बहुत ही स्पेसिफिकली आई वांट टू थैंक द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर दैट. This will create a complete ecosystem of construction equipment in India, not only for the Indian market, which is the third largest, but also India will become a very strong global supply base supplier for construction equipment. The beautiful part about the budget is मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया गया है. इसके कारण ये होगा कि जो हमने काफ़ी नेगोशिएशन के बाद जो एफटीए साइन की है, जैसे ईयू एफटीए की है, उसका सपोर्ट लेके इंडियन इंडस्ट्री कैन रियली ग्रो. सो आई फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ सीआई मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस काउंसिल, आई रियली वांट टू congratulate the honorable finance minister. And also she has not only limited to herself only in the manufactured high-tech goods, but also focus on simple items like leather and non-leather products, textile. All of these add up. So when I look at this budget, it is not about one big announcement. It is about so many different announcements which are going to cover a vast spectrum of industry. And this is going to really launch India. Like last few years, we have been very successful on the services sector, but I feel now the time has come for the manufacturing sector, in line with the government's focus on national manufacturing mission. And this budget is going to be a big supportive of that particular vision of drive of converting India into the global manufacturing hub. सेतुरमन सर, अगर आपसे पूछूं मैं, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं और आपके बिग 3 टेकअवेज क्या रहेंगे इसमें सर? Like Mr. Shetty, first I want to thank the Honorable FM. It is a very growth-oriented budget. Beginning of the speech, FM mentioned that talked about the Reform Express, and as we went through the budget, she was firmly on the Reform Express. There's something there for everybody. She's talked about artisans, she's talked about weavers, she's talked about fisheries, talked about legacy manufacturing, talked about the SEZs, fulfilled a long-standing request from Indian industry on container manufacturing. So there's something here for everybody. She's focused upon livelihoods. She's focused about aspirations of India. At the start of the speech, she talked about the young leaders dialogue. She's clearly taken inputs from there. She's talked about non-IT services. So, overall I would say it's a very pragmatic budget, fiscally prudent, but there is something there for everybody, and a very long-term focus, because she's talked about manufacturing hubs, both for legacy as well as the new age businesses, and especially the gesture to SEZ units to do work in the domestic tariff areas has been a long-standing ask from Indian manufacturing industry.
सर अगर बात की जाए जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन हुआ है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जेसीबी ऑब्वियसली इंडिया में एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के पे काम करता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कितना बड़ा पुश एक तरीके से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को यहाँ पे मिलता हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को अगर पुश मिल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिल रहा है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत ही उम्दा अनाउंसमेंट हुआ है और अभी जो हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री इंडिया की वो भारतवर्ष से 135 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली केटरिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे आपने कहा कि भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और उसके कारण ये होगा कि हमारी जो इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज़ हो रही है उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, उनकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी और सबसे बड़ा ये है कि उनका कॉस्ट कम होगा। और जिस तरह से आज भी हम कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हम जापान या चाइना या यूरोप से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इस स्कीम के कारण ये होगा कि ये जो बड़ी कंपनियां बाहर से अभी इंडिया में कंपोनेंट्स भेज रही है वो अभी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी और इन कंपोनेंट का जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसका कॉस्ट कम होगा, विच विल फर्दर कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. सो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट. The second benefit is that construction equipment, sometimes people don't appreciate, every construction equipment machine creates 5 to 6 jobs in rural India. आज हम देश में हर साल 1,35,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेच रहे हैं, तो आप सोचिए कितने सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं. तो अभी न केवल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो OEM कंपनीज के द्वारा जॉब्स क्रिएट होंगे, but also with the supply chain partners, more and more jobs will be created, and it's a very exciting industry which is growing very rapidly. So announcement on further investment on infrastructure is very positive, but I would say the announcement on supporting construction equipment to really now take Indian construction equipment to the global level is again very very positive. सर पिछली बार जब हमारी बात हो रही थी आपने कहा था कि इंटरनेशनली तो हम काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, जो आपने अभी भी कहा आप 135 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें, बट डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी स्लो था. अब इस नए अनाउंसमेंट्स के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक नया स्पेसिफिक एडवाइजरी एलोकेशन किया गया है. अब क्या डोमेस्टिक मार्केट को आप ग्रो करते हुए देख सकते हैं? मैं देख रहा हूँ कि अब से डोमेस्टिक मार्केट जो पहले पिछले साल थोड़ा उसका म्यूटेड रहा था वो अभी ग्रो करेगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले 12.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, रेयर अर्थ माइनिंग स्कीम्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. नाउ दंकुनी से सूरत की और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हुई है, सो ये सभी जो है दिस विल हेल्प इन फर्दर एनहांसिंग the use of construction equipment across the country, which is again going to be very positive. सेतुरमन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से क्रिटिकल मिनरल रीसाइकलिंग दोनों पे काफ़ी फोकस किया गया, लिथियम आयन बैटरीज पे फोकस किया गया है, लिथियम आयन स्पेसिफिकली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? लॉजिस्टिक्स से अगर जोड़ते हुए अगर देखें, EV सेक्टर पे, रिन्यूएबल पे एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ये कितना बूस्ट करेगा एक हमारा 2047 तक नेट कार्बन जीरो तक जाने के लिए? किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल? We know with the FM has given some tax benefits also for equipment for critical mineral manufacturing, for extraction, also for the energy storage. I believe that with this, the capacity building will first start. You know, we really need to expand capacity and increase the manufacturing of this, and definitely there will be a boost. जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपका भी शुक्रिया. Thank you. बहुत धन्यवाद. Thank you.